No greater impact than spreading education and empowering people who in turn will empower and teach other people. A very warm welcome to you all on the session 2 of day 5 of the Faculty Development Program. As we all know, this FTP is being organized to talk about the implementations of new educational policies 2020. We extend a warm welcome to our guest, Dr. Amit Ahuja, University School of Education, Guru Gobind Singh University University. Please give a huge round of applause. We also take the privilege in virtually extending our warm welcome to all the dignitaries. Chairman Sir Sardar Tejmeet Singh Sethi ji, Co-Chairman Sardar Daljinder Singh Kohli, Manager Sardar Rajinder Singh, Senior Vice Chairman Sardar Harvinder Singh Anand, Senior Vice Chairman Sardar Harjeet Singh Syal ji, Vice Chairperson B.V. Dilveer Kaur, Vice Chairman Sardar Jagmohan Singh Kochar ji, Vice Chairman Sardar Manmohan Singh Dhingra ji, Vice Chairman Sardar Gurdeep Singh ji, and our Principal Ma'am, Dr. Jyoti Bhalla. I welcome all the stakeholders, audience, teachers, and participants who are connected with us physically as well as virtually for this session. We know the times are tough. We are still making best efforts to find ways to stay connected. I feel fortunate in extending my sincere welcome to you all. Please give a huge round of applause. As Guru Nanak Dev Ji says, everything happens by God's grace. God knows better what is right or wrong for each one of us. Hukam Razai Chalna, Nanak Likhya Naam. To honor our Guru's teachings and begin the event with the blessings of divine, I request you all to kindly cover your heads for Shaman, performed by our students. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
Thank you everyone for being such a blissful audience. Let's begin our program by lighting the lamp for the second session of Faculty Development Program. The light in the world comes principally from two sources, the sun and the student's lamp. So let's embark upon today's event with lighting of lamp. I request our guest of honor, Dr. Amit Ahuja, and our principal ma'am to please come forward and light the lamp. With the desires of emitting the light and dispelling the darkness around every side. Salutations to the light of lamp bring auspiciousness and prosperity. The lighting of lamp before a ceremony spreads divine grace. Let the light shine and the darkness of ignorance be swept away from our lives. I request our guest of honor and principal ma'am to kindly proceed towards the dais. Kindly put your hands together for our guest of honor. We would like to welcome our guest of honor with a small token of love. I would like to request our principal ma'am to kindly felicitate our guest. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I welcome everyone connected with us in this FGP. Your presence is highly important to us. Now I would request our faculty, assistant professor, and coordinator of FGP, Ms. Ankita Masi, to kindly introduce us to NEP. Respected dignitaries on the dais, the visionary, Honorable Dr. Amit Ahuja sir, our mentor and source of inspiration, respected Principal Ma'am, participants and GMCE members, a very warm welcome to you in 1 week Faculty Development Program. Friends, in the recent times, our institution has achieved phenomenal heights. We have gathered here with the intention to shape a better education system. The FDP will be enlightening to all of us regarding new education policy NEP 2020. The NEP 2020 has been approved by the Union Cabinet on 29th July 2020. It is the first education policy of the 21st century, which aims to address the many growing developmental imperatives of our country and is aligned to the 2030 Agenda for Sustainable Development. The new education policy will change the face and future of teacher education in India by introducing Integrated Teacher Education Program ITEP. In view of all this, a faculty development program is organized by Guru Nanak College of Education in order to bring all of us together on one platform to discuss, assess the presence, need, promotion, and introduction of NEP and its impact on teacher education system in India. Thank you. Thank you, ma'am. I would request
Thank you so much, ma'am. The other reason we have gathered here to extend our warm welcome to our resource person, Dr. Amit Ahuja. He is an assistant professor, University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi. He is experienced with a demonstrated history of working in the education management industry, skilled in lesson planning, educational technology, instructional design, adult education, and tutoring. He has a vast teaching experience and attended various seminars, conferences, workshops, training programs, etc., organized by CIE, SCRT, and other professional organizations. Sir has an administrative experience and rendered his services as a university representative, admission officer, and elected in the Executive Council of All India Association for Educational Research. Sir has also been invited as a resource person or expert of seminars and conferences in various organizations. Sir has a paper published under his bag, Ahuja A and Siddiqui N in 2001 on environment for generating creativity in Vigyan Shiksha and many others. Sir has attended various seminars, conferences, and workshops at national and international level. He's also a life member of associations like All India Science Teachers Association, Kolkata, Delhi State Science Teachers Forum, Indian Association of Teacher Educators, All India Association for Educational Research. We extend our heartfelt welcome to you, sir. Please give a huge round of applause for all of the students. We really look forward to your enlightening session, sir. I request you to please come on the podium and say a few words and enlighten the audience, followed by your session. Thank you so much. सबसे पहले तो जो मेरा सीवी आपने पढ़ा सी कॉपी एक मुझे दे। ये मैंने नहीं बनाया और आपने बहुत प्रभावशाली बनाया। आप बोलिए। It's a compliment, it's not a respected person of this prestigious principal ma'am of Jyoti Balaji, teaching staff, non-teaching staff, my dear scholars, fellows attending this event virtually. It's my pride that I have been able to build this college for this reason in this corona period. And after a halt, I can say that I'm back. We have got oxygen. Such events act as oxygen, breather for us. मैं मैडम से बात नहीं कर रहा था कि काश की कोई डिलीट कर दे हमारा पीरियड को पीछे जाओ देखा कि तभी वो हुआ तभी हमारे लिए अच्छा जहाँ तक बात है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चर्चा की और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ मेरे कुछ साथी वर्चुअली पूरे भारत से जुड़े होंगे तो मैं एक बात कह दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये बात भी कही है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग और मदर टंग की भाषा ये होती है कि जिस भाषा में हम सोचते हैं उस मदर टंग है मदर टंग नहीं मदर टंग इधर है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं तो एक टाइम ब्रेक या ना Yes. Vygotsky ने भी ये बात कही zone of proximal development कि जब maximum development हमारी एम करती है that comes to our culture एक बच्चे को जन्म लेते ही हम अगर इस फैमिली में रखें तो किसी और परिवेश का होगा उस फैमिली की भाषा बोलने शुरू कर देगा आपको सिखानी नहीं पड़ेगी लेकिन दूसरी भाषा सिखानी है तो उसको कायदा भी देना पड़ेगा पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें सोचना उसको में जुबान में नहीं है So that's why my reason for speaking mostly in Hindi is this because I think it आपको वीडियो आपका दीजिए देखिए बैटिंग करनी है पिच पे तो पूरी विकेट क्या है फिर चलिए नहीं काफी दिन बाद करना होगा सर तो मैं कह दूं इस बात को क्योंकि कई लोग मुझसे कहते हैं can you speak English don't you know English well I have chaired my session at University of Sussex England I chaired a session at University of Toronto Canada there is no question of knowing English but the question is in what language when is that इसी तरह इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत की फैक्टर की बात कही है
कि बात वो की जाए जो समझ में आए, जिस भाषा में आप सोच रहे हैं उसमें सीखें। हालांकि उन्होंने उसका रिकमेंड किया है, उसने मैंडेटरी अनिवार्य नहीं बनाया। दूसरा, इसकी भूमिका हमें देखनी होगी इस एजुकेशन पॉलिसी की, ये चली कैसे, इसका जेनेसिस कैसे आया, तब हम पकड़ेंगे कि आज ऐसा क्यों होता है। जब कोठारी कमीशन आया, आइकॉनिक कमीशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिवेलप्स, वो रिफ्लेक्ट हुआ था 1968 की एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। फिर पॉलिसी आई 1986 में, जो पॉलिसी इतनी जल्दी बनी कि लोकसभा से राज्यसभा में चली गई, राज्यसभा से लौट के फिर भी आ गई, ये दिनों में, वीक्स, 4-5 दिन में हुआ, क्योंकि उस समय 89% नंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बता, प्लीज सुन ले, मैं सिनेरियो बता। तो बिल पे विरोध हुआ ही नहीं, डिस्कशन हुआ ही नहीं, रोकना किसका, जब राज्यसभा में बिल में, लोकसभा में बिल तो पास होगा ही होगा, और आनंद ये काम हुआ। और कभी भी पढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि जब कभी टीचिंग का कोई भावना होता है, कोई थ्योरी उठाओ या कंसेप्ट उठाओ, हमेशा ये देखना कि उस समय देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन को वैक्यूम में पैदा नहीं होगा। उस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा था, नेशनल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट जीत चुका था 1983 में, टेररिज्म के खतरे में था पूरा देश। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके थे भारत की तरफ से। फॉरेन के अंदर भी ये था कि ग्लोबलाइजेशन लगभग शुरू भी हुआ था। ऐसे में एजुकेशन को कौन पूछता है? आगे पॉलिसी नई बात है, आगे चीजें पता नहीं था। पहले तो मैं ये बताना कि डिबेट नहीं है पार्लियामेंट से, और ये सब हुआ, बाकी प्रोलिफरेशन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि वो एक बार ही इंप्लीमेंट कर दी गई, नतीजा पैसा था। आप कोई भी घोषणा करते हैं तो जेल में पैसा, चलो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, छाप देंगे, प्रेस भी कोई बात नहीं, बिगाड़ इकोनॉमिक्स में बचेगा नहीं। तो उस समय जो ऑपरेशन बैकवर्ड की जैसे बातें की, उनको पैसा नहीं था उसको करने, नतीजा वो बातें फ्लॉप होती। इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे फर्स्ट बात है कि उन्होंने कहा इसको फेजेस में लागू, एक साल ही नहीं करेंगे, बटन दबा के लागू नहीं, हम धीरे धीरे लाएंगे। तो जिसमें टारगेट्स आप देखिए आपको कई बातों में मिलेंगे, 2025 में ये होगा, 2030 में होगा, पूरा लॉन्ग ठीक है, पैसा का प्रबंधन किया इंसान हो जाएगा। तो ये पहला एजुकेशन। दूसरा जो इसके अंदर बात आ रही है, मेरे से भी ढाई थोड़ा तो बात की बात है, कुछ बातें ऐसी होती हैं किसी समाज के लिए कि वो कहीं तो जाती हैं लेकिन वो लागू नहीं, वो खाली पढ़ने में इसे लागू या फिर डेवलप कमीशन में कहा गया है ऑस्ट्रेलिया लर्निंग जानते होंगे मुझसे ज्यादा अच्छी, बड़ी अच्छी बात है, समाज के लिए होना चाहिए। जब ये पैंडेमिक पीरियड चल रहा था और ये मजदूर लोग शहर छोड़ पैदल जो कुछ हुआ दुर्घटना हुआ महाराष्ट्र में, ट्रेन में ऊपर निकली, जो कुछ हुआ, क्या हमारा समाज इन लोगों रह नहीं सकता था कुछ समय के लिए? ये तो है ना कि आप काम करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं, काम नहीं करते तो हमारी जबरदस्ती, ये तो क्या उस समय जब स्कूल बंद थे, गर्मी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, इनके रहने के लिए खुले में ही सही हम कुछ जगह मैनेजमेंट का डाल रोक सकते थे, धर्मशालाएं थी, होटल वालों के लिए ऐसा टैक्स लगा दिया जाता है कि आपको लोगों को रखना हो, केवल रहने को जगह तो नहीं, खाने की बात थी तो हम इतने वॉलंटरी अनुदान क्यों करते हैं? तो क्या एक फैमिली, एक आदमी का एक टाइम का खाने का इंतजाम नहीं कर सकते? एक मोहल्ले से वॉलंटियर हो जाता है कि एक आदमी का एक टाइम का खाना, दो का भी नहीं है, दो लोगों का भी नहीं है, हमको चाहते हैं तो छत और खाना मिल गया तो एटलीस्ट वो भागते ना, वहां से उन्हें भागना पड़ता। ये लर्निंग टू बी में आ रहा है कि हमारा समाज इस हालत में नहीं था कि आप काम नहीं कर रहे चलिए, जब काम मिलेगा तो आ जाइए, इसका मतलब हमारा जगह नहीं है, हम तैयार नहीं है। इन बातों को मुझे बड़ी गहरी बात पकड़िएगा, लर्निंग टू बी होने के लिए तो अस्तित्व तब है जब हम देखें यू कांट मूव समाज को भी देखना होता है, जो बातें वो यहाँ छोटी छोटी बातें कई लर्नर लोग भूल गए हैं, क्या मैं बोलूं इनको, क्या किसी वो वाली बात अब मैं बोलूंगा 10 + 2 + 3 का स्ट्रक्चर था, वो 5 + 3 + 3 + 4 बोल के जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो की फैक्टर आया है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर, ईसीसी का बहुत जरूरी है। प्यारे की थ्योरी में जाइए, कौन सी थ्योरी है, प्री ऑपरेशन
कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इंटेलिजेंस इज समवन इंट्यूटिव इन नेचर। यहाँ से कॉम्प्लीट में जाएगा, यहाँ से फॉर्मल में जाएगा। हम पहले क्या करते हैं, सीधा इसको फॉर्मल कॉम्प्लीट में पकड़ो, फिर अपने तरफ से करिए ही हो। अर्ली चाइल्डहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री फेजेस होते हैं लाइफ के, यही नींव रखते हैं। और रखिए फिर हम उस फसल को बाद में काटते। हमने उस तरफ को ध्यान दिया नहीं, बाद में कहते हैं यू शुड बी गुड स्टूडेंट। तो वो ये अच्छा पॉइंट है, इन्होंने कर सकता, लेकिन प्रश्न ये है पैसा कहाँ से आएगा। अभी उस पर सम गुड विशेष है, संभावना है, ये समस्या है, इस संदर्भ में। दूसरा जो मुझे पर्सनली इस बात में इफेक्ट किया वो ये कि हमने एक बाउंड्रीज को भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस है। इसका अर्थ यह है कि आपको ये सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, ऐसा आपको चार हिस्से, एक आप एजुकेशन के फिर लॉ का पढ़ लीजिए, से मैनेजमेंट का पढ़ लीजिए, इंग्लिश का पढ़ लीजिए, हम उसको यहाँ काउंट करेंगे क्लास का। जैसे यूजीसी ने मैंने कहा है कि 20% कोर्सेज आपके आईसीटी पोर्टल से आएंगे, जस्ट लाइक स्वयं मैनेज टेट वगैरह से, तो वैसा भी मैंडेटरी। तो इसलिए हमने सीबीसीएस कहा कि नहीं जी, एजुकेशन का बच्चा एजुकेशन पढ़ेगा, लॉ का बच्चा लॉ, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। थोड़ा कि हाइब्रिड कर दीजिए कि हमें अपने घर की खिड़की से दूसरे का घर कैसा दिखता है ये भी तो देखें। हम खिड़की बंद करके अपना घर देखें, ये एक बाउंड्री थोड़ी दी है। फिर अगली बात ये क्या है, अभी मैं अधिकारी का लेक्चर में जाता हूं, मुस्कुराया नहीं। ये बात बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, आई मीन क्या होता है कि हम बिल्कुल आइसोलेशन में एक जनरल आइडिया आदर्श दुनिया जब ये रियलिटी क्या है, ठीक है। तो मुद्दा यही है कि एजुकेशन को बाकी से जोड़िए, तो एजुकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, क्या ना नहीं उसे प्रूव भी करें, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं। बहरहाल ये बातें जो चल रही हैं, पहले भी सुनते पर ऑनलाइन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, इसके ऊपर इन्होंने मुझसे कहा गया कि थोड़ा सा बोलेंगे। तो टीचर का जो करंट सिनेरियो ये आजकल नहीं है, ये युगों से चला है कि टीचर का जॉब प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है एंड उसकी सर्विस कंडीशंस अच्छी नहीं। हम कभी भी इंस्पेक्शन पे जाते हैं, हमसे मतलब मैं स्कूलों में भी जाते हैं, इंस्पेक्शन पे जाते हैं, हाँ जी रजिस्टर बच्चे बने कि नहीं, कॉपियां चेक की गई है कि नहीं, है बच्चे ड्रेस में आए कि नहीं, टीचर टाइम पे आए कि नहीं, टीचर की तैयारी चेक है, इंटीग्रिटीज देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्लास में टीचर पढ़ा किस मेथोडोलॉजी से है, एंड दैट इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर ये माना जाता है कि मैंने ये पढ़ा दिया तो सिलेबस पूरा हो गया, आपके सामने समझ सकते हैं मेरा सिलेबस पूरा हो गया, लर्निंग होगी। Has anybody raised this question? किस काम के लिए एनर्जी ये टीचर के पार्ट है, वो दो सोर्स है। पहला है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो हम दैट इज 1:10 अगर एक 31वां बच्चा हो गया कॉलेज में, बस ये 30 होगा बच्चे। सेकंड टीचर बस ये क्लास दे दीजिए और वहां उन टीचर के बच्चों का वो रिकॉर्ड रखे, उनके डॉक्यूमेंट्स रखे, यही बात है। लेकिन ये क्या नाम है, प्रॉपर्टी इंचार्ज है, ये उस चीज के इंचार्ज है, या आपने वो काम करा है ऑफिस में, ये बिल्डिंग का है, ये दिन क्या है, ये इधर-उधर चीज में भी काम करेगा। इसके लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रखना होगा। दिल्ली गवर्नमेंट में चली थी कोई पॉलिसी, चली थी बस वो पहुंची नहीं, कि कहा गया कि जुडिशरी रैंक आदमी होगा जो सारे चार्जेस टीचर से लेगा, टीचर कम पड़ता वो पता नहीं होगा। तो अगर मुझे पता है कि ये मेरी क्लास है, मुझे पढ़ाना है, 30 बच्चे हैं, तो मैं ओपनली कह रहा हूँ कोई टीचर इस देश का ऐसा नहीं होगा जिसका 90% प्लस से कम रिजल्ट, जिम्मेदारी मेरी आगे इंसान का बच्चा ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ये सारी मैं टीचर को तो दूसरा इसके अंदर यहाँ ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बात है सर, हम दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं, सिंगापुर में या हम कहीं भी वहाँ असिस्टेंट टीचर क्या है, उसका काम असाइनमेंट देकर टीचर का काम डिलीवर करता है। मैंने चाइना में वुहान का भी मशीन दिखाया था कि टीचर लेक्चर दे रहा था, बस एक बच्चे कर चार जैसे होती है टीचर की दया दशा और दुर्दशा सुधार वो भी क्लास साइज कंट्रोल करके और गदी जिम्मेदारी को आगे
आप ये फोकस करें। अब मॉडल ऑफ टीचिंग में एडवांस ऑर्गेनाइजर और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ाते हैं, शायद आपने पढ़े नहीं पढ़े तो ये मत, ये होता है बट हु नोस, पढ़ लीजिए प्रैक्टिस। और मैंने अक्सर इस मुद्दे को उठाया कि बीएड के 2 साल की टीचिंग प्रैक्टिस की, तो मैंने इसके अंदर ये मुद्दा इसमें रखा क्या सबसे पहले जो हम 4 महीने के लिए स्कूल में डाल देते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले कि एक ही स्कूल आए, एक महीने अर्बन एरिया, रूरल एरिया, स्लम एरिया, पॉश, आप इन हर तरह के बच्चों को पढ़ाएं, बॉयज गर्ल्स को पढ़ाएं, गर्ल्स बॉयज को पढ़ाएं, ताकि जेंडर एजुकेशन हमारे सामने स्टूडेंट है, नहीं करेगा इसकी चाहूँ जो बॉयज आई कांट टीच दिस टॉपिक गर्ल्स, दोनों विद्यार्थी बात करो ये चीजें। लेकिन हमें कितना कंफर्ट जोन दिया गया कि एक ही बच्चा है, एक ही स्कूल है, वही सब जगह तो 4 महीने से पढ़ाना है, तो इससे अच्छा हमें क्या मिलेगा? जब टीचिंग में ट्रेनिंग में हार्डशिप नहीं आएगा, आप एक्चुअल फील्ड में नहीं जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा इन बातों को यहाँ पर देखना होगा, टीचर की कंडीशंस क्या है, इसको उठाया गया। एनईपी एक्नॉलेजेस द रियलिटी ऑफ अनमोटिवेटेड एंड डिसप्रिविलेज्ड इंडियन टीचर्स। डिमोटिवेटेड चाल नहीं है, यहाँ पर ठीक है जी पढ़ा के चले गए, वही कहानी, सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा है वो बात अलग है, लर्निंग की करेंगे। तो एक थोड़ा सा एक थ्रस्ट चाहिए था, वो इस एनईपी 2020 में लाने की कोशिश की गई है इसके अंदर ये। और इस एनईपी में ये भी बात डाली गई है 21st सेंचुरी स्किल्स जो कि स्किल डेवलपमेंट का चर्चा आज इसमें ये बात की। देन इन एरिया से हम बात कर रहे हैं वो की क्वालिटी, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ टीचर्स। क्वालिटी क्वालिटी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि ये धोखा लग गया होगा इसके अंदर आपका काम क्वालिटी। क्वालिटी मींस थिंग्स हैव रीजंस टू हैव, बातों के होने का कारण। अगर एक आदमी बोले तो क्यों बोलेगा, एक आदमी चुप है क्यों चुप है, थिंग्स हैव रीजंस टू हैव। तो हमारी क्वालिटी भी हमें चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंडिकेटर क्वालिटी का क्या होता है? टीचर की डज द टीचर स्टिमुलेट यू टू थिंक। अगर उसके पढ़ाने से सोचना शुरू हो गया तो समझिए पहला सीढ़ी। सेकंड, confusion is the first step towards knowledge construction. हमारे तो चली हरकत तो होगा, लेकिन जो जड़ स्ट्रक्चर है उसको क्या? तीसरा इंडिकेटर क्वालिटी होता है, पहला वो आपको सोचने का मजबूर करेगा, दूसरा कुछ कंफ्यूजन होगा, तीसरा मोटिवेट करेगा। क्यूरियोसिटी के थ्रू लेट अस फाइंड समथिंग। सोचना सीखना है, कंफ्यूज हुए यार गलत क्या सही है, अवस्था निकालो, यही तो लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से क्वालिटी, कॉम्पिटेंस, योग्यता। कॉम्पिटेंस हमारे यहाँ डिग्री से नापी जाती है और हमारे नंबरों से नापी जाती है। ये बीएड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये एमएड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। याद रखिए, टीचिंग doesn't reflect your academic marks. Teaching is an intelligent. आएगा कौन करेगा? इंसानों से डील कर, but your marks never show your intelligence. They show your only memory power of memorization. Competence कहाँ से आ रही है? How do you interact with others? There is most important thing is unity with others. आजकल ये नॉन अटेंडिंग जगह में शुरू हो गया, काम बच्चे बड़े खुश होते हैं, इससे अच्छी क्या बात है, जाओ लेकिन डिग्री मिल जाएगी, इससे अच्छी क्या बात है। इस तरह कई बच्चे होते हैं वीक में एक दिन आना, और जो टीचर बुलाए ऐसे बच्चों को गलत सबसे ज्यादा लगता है कि आप ही, या वो ये भूल जाते हैं। ठीक है आप घर पढ़ के आप टॉप कर लेंगे एग्जाम को, लेकिन जब फील्ड में आना होगा तो सामने भी मिल सकता है। इनसे कैसे दिखता, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, इनके बीच में रहना होगा, इनसे सीखना होगा। मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है, पहले इस बच्चे की स्टडी तो करूं, इसकी नेचर क्या है, ये थोड़ी कि मैं तो घर से पढ़ के आया था, ये मैंने दे दिया, मैंने पढ़ा। यकीन मानिए अगर मैं बच्चों के मुताबिक चलना शुरू करूंगा, कंटेंट तो मेरा वही है, 5 साल बाद मेरी एफिशिएंसी सिंसियरिटी बेस इन द नाम। डोंट वरी, ये फिल जितनी हलवा की अपनी बेकार नहीं है, अगर मैं कौन कर ऐसा नहीं होता। वो मे बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, आई मे बी गोल्ड मेडलिस्ट, दिस थिंग एंड दैट, लेकिन घर जाके मैं पढ़ रहा हूं और मैं ठीक डोंट कॉल मी टीचर है तो लोगों के बीच में जाना। हमारे पास बड़े बच्चे होते हैं बीएड में, तो यूनिवर्सिटी में बीएड मैनेजमेंट लॉ वगैरह सब के बच्चे, बिलीव मी मैं उनसे बहुत सीखता हूं, मैं सुनता हूं क्या इससे समझ आता है कि सोच क्या
एक ही सोच ही है, अब मुझे तो केवल अपना सब्जेक्ट उसमें डालना है, एंड दैट्स माय फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये क्या है, जो सोचता सोचे, मैंने जो क्या लिखी है दिस इज नॉट द सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, मुझे प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की डाइट देंगे, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की डाइट देंगे। ये हमने एक बैलेंस डाइट बनाई है, सारे खाओ किसको जो चाहिए। अगेन दिस तो कॉम्पिटेंसी यहां से है, देखिए सामने थर्ड कैरेक्टर, चरित्र क्या है। कैरेक्टर हम कहते हैं कि जनरली अपोजिट जेंडर को याद ऐसे दिखता है ये कैरेक्टर, और छोटे से है लूज में कैरेक्टर ये नहीं होता। कैरेक्टर ये होता है कि आप ऊपर से क्या मुंह में राम ऊपर से स्वीट वॉइस आप जैसा नहीं आदमी कोई, लेकिन अंदर अंदर आप खड़े पड़ते हैं, ये कैरेक्टर क्या है उसका। अपोजिट जेंडर को खुली नजर से देखना ये केवल एक भाग है उसका, एक पर्सनालिटी का। आप ऐसे ही पूरा कैनवस में मत करिए। एक आदमी मुंह से बुरा अंदर से बुरा, या कोई विषय का नहीं है, लेकिन एक मुंह से मीठा अंदर से बुरा है, ये दवाई टीचर ये होता है। एक कुमार का मुझे तो है याद नहीं आ रहा कि एक कुमार की टीचर मेरे ऊपर से थाप मारता है, लेकिन वास्तव में मतलब कुछ शेप नहीं आता। टीचर है डांट रहा है, फटकार रहा है, गलती करके, अरे ट्रेनिंग में नहीं डांटेंगे तो क्या जब जॉब लग जाएगी तब डांटेंगे क्या। मेरे पास तो 2 साल के लिए आए हो, 2 साल बाद तो मेरा भी राइट नहीं है कि मैं सड़क चलते किसी को कहूं हां बेटा जो है ट्रेनिंग के अंदर ही किया जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में ही नहीं सिखाया तो फिर जॉब लगने के बाद कौन सिखाएगा। लेकिन होता ये है कि जो भोगता है उससे खाता हो सकता है, विलन होता है क्यों आप ही बोलो, अरे देखिए तो सही बोला क्या कभी बोल लेंगे तो कैरेक्टर यहाँ से आता है कि ठीक है ऊपर से होने का दिल से तो इंसान अच्छा है यही इधर। तो इन्होंने इस रिव्यू पॉलिसी में इन मुद्दों को भी कोर में किया कि हमें ये देखना है जो फिर सर्विस प्रोफेशनल अपने आप टीचर्स पे मानते हैं। दूसरा ये सामने पढ़ने की कोई कोशिश नहीं है, ये मैं क्या बोलूं, टीचर इज एट द कोर ऑफ becoming progressive flexible multidisciplinary technology skill focused education for innovation business and sector। तो एक तो हमारे पास की एजेंट, लेकिन वो की एजेंट हमारे ऐसा टीचर एक 5 सितंबर को उसको बड़ी पोस्ट बनती है, ग्रुप ब्रह्मा ग्रुप विष्णु ग्रुप महेश एसएमएस खाली करना मुश्किल हो जाता है व्हाट्सएप, लेकिन 6 सितंबर को पूछता है याद इस बात को, जरा किसी को कह दिया तो बच्चे कंप्लेंट कर देते हैं, किसी की बात ना मेरी ना आपकी किसी की बात। मेरे पास एग्जांपल ये टॉलरेंस है हमारी, तो या तो 5 सितंबर झूठ बोलता है या 6 सितंबर बाद में बिहेवियर झूठ बोलता है, टीचर का इन शब्दों में ही हो रहा है। याद रखिएगा the third species on this earth that is reliable for you is offering a father. Declare third reliable species on this earth. क्या वो पूरा क्या बोला जाएगा आगे से आप सोचेंगे कि यार इसकी तरक्की ना हो, ये टीचर को मैं समझा रहा है मेरा इतना तो भूलेगा कहीं तो भूलेगा आगे फिर या हमेशा। अब मैं स्लाइड पे आ रहा हूँ कैरेक्टर को 2 मिनट दौड़ के जो इसमें होता है अपने स्टूडेंट को अपनी संतान से बायोलॉजिकल प्रोजेनी नहीं है, बायोलॉजिकल कीड़ी नहीं है, अपने बच्चों को अपना स्टूडेंट से अपना बच्चा तो अपना ही है, लेकिन ये तो सिर्फ है कई दिन तो पेरेंट्स बाहर जाके बच्चे शरारत करते थे पर एक घर पे ऐसे नहीं करते, तो वो तुम्हारा घर है ना करके तो देखो बाहर जो भी तुम घर पे क्यों नहीं करते। इसी तरह हमारा विद्यार्थी ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी मिले पढ़ेगा, इस कंसर्न को एनसीएम 2005 में क्या अगर स्टूडेंट नहीं आए तो बजाय 10 पढ़ने के पूछिए क्या बात हो रही वी आर मिसिंग यू, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं आप आइए ना, उसको हो जाएगा कि समझिए फिर स्वामी तो हम बाहर आएगा। स्कूल में मैंने किया था और बच्चे मैं एडमिट करूँ स्कूल में तो किसी टीचर ने किया नहीं खुद सर आप क्या हो सर आपने क्लास करें मैं तुम बात समझ आती नहीं तेरे पास आपकी क्लास that means he became more interested in me than my teaching. Later on, he became interested. एक रैप ओपन कहीं तो दिमाग चला
दूसरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देके किसी को अगर हम ठीक करते हैं, तो क्या नेगेटिव तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देके ये स्किनर की बात कर रहा हूं तो सुधरता है। मान लो बच्चा नहीं आता, नहीं आया, आज वो क्लास में नहीं आया, अच्छा गाना नहीं आया, आखिर में क्या जवाब होगा? वो रास्ता बदलना पड़ेगा। और जैसे ही नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की समझ तो आपने क्यों मजबूर किया नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है? तो टीचर की कॉम्पिटेंस कैरेक्टर यही है कि वो इसका बुरा नहीं चाहेगा और वो देने के लिए तैयार है। दूसरा, हालांकि जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी आई उसने तो बहुत ही नेगेटिव बात बोली 2012 में कि ब्रोकन टीचर एजुकेशन सेक्टर इस रनिंग 2012 और इन्हीं जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन से ही रिपोर्ट से ही इनकी नींव पड़नी शुरू हो गई थी इस एजुकेशन पॉलिसी के बेटा ब्रोकन सिस्टम को ठीक करो उसको, क्योंकि 86 के बाद ये पॉलिसी अब आई इस पर 34 मेरा ख्याल है कई लोग जन्म भी नहीं हुआ था आई वाज इन सेल्फ छोटे साल तक एक पॉलिसी के अंदर करना जब गवर्नमेंट भी 5 साल बाद बदल जाती है तो एजुकेशन सिस्टम कितना हुआ हमारे मोबाइल में हर 34 महीने बाद बदल जाते हैं, लैपटॉप बदल जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वही तो खाया तो किसी को नहीं सवाल तो जेएस वर्मा की ये बात ये पुरानी बातें इसको कर दो तो इसके नींव फंसे हैं। फिर उसके अंदर उन्होंने बोला कि डोंट ब्लेम द टीचर्स फॉर पुअर रिजल्ट्स, जो पुअर सिस्टम चल रहा है उसके लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है, जबकि कुछ कंडीशंस हैं जिसे सुधार की जरूरत है जो एनईपी है वो वही मुताबिक क्या तो कैसे हमें इस पे ध्यान देना होगा। एजुकेशन पॉलिसी होती है ये रिक्रूटमेंट से ही बात शुरू होगी, भर्ती कैसे होगी, डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस कंडीशंस, ये तीन बातें आपकी भर्ती आपकी पोस्टिंग और वहां पे हम कैसे करेंगे या इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात जाएगी वो लेने जा रहे हैं इसके अंदर। तो पावर ऑफ टीचर उन्होंने आइडेंटिफाई दैट इज अ लेटेंट पावर ऑफ टीचर, टीचर की कुछ जो उसके अंदर मौजूद है केवल आप उसे कंडीशंस को ठीक करके आपको देंगे। Certain reforms were suggested by this policy, that is restore the high respect and status of the teacher, उसमें उन्होंने दिया। फिर उसमें बोला कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2021 will be drafted, यानी इस साल पेंडेमिक हो गया इतना थोड़ा बात आगे जा सकती है फॉरवर्ड टू गाइड ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें आपका ये 4 साल पूरा ड्राफ्ट हो जाएगा इस सिस्टम के अंदर to guide all teacher education program and levels, that is pre-service and in-service of teacher, those who are working in academics and vocational and special education. तीनों को लिया education, academics, special education, vocational. जहाँ पे teacher होंगे इनकी in-service, pre-service condition. Excuse me, voice is not coming. बात की गई है तो देखिए यही ड्यूटी देखिए His voice is coming at all. We can't listen. You're saying. अगली बात आगे चली जाए 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड टीचिंग प्रोग्राम की बात की गई। इसके अंदर मेजर एम्फेसिस थी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम रखेंगे, इंटीग्रेटेड ड्यूअल मेजर बैचलर्स डिग्री, इस तरह के कुछ प्रोग्रामों की बातें कर रहे हैं और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चाहे अब यहाँ Anyone is listening? बीएड का टेस्ट करते हैं उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटेलिजेंस के, जनरल अवेयरनेस के, भाषा यही होते हैं क्वेश्चन। I know voice is not clear. A lot in between. Please check your mic. Please check your mic or let sir sit and explain because no voice is coming clearly from the podium. बीएड के अंदर उसका रंग में नहीं होता है, लेकिन अगर जो कहीं दिख सका बीएड में सब रंग को क्या तो बात ही नहीं है। लेकिन एजुकेशन आई डोंट नो हाउ टू पढ़ मैं कह रहा आपने तुम्हारी सीट रोकी, आपने एंट्रेंस क्वालीफाई कर लिया, हॉस्टल में 1 साल रहने को मिल गया, टीचर आपने बनना नहीं तो यहां देखना Please listen. ये क्लरिकल बीएड का जो तैयारी कर रहा हूं वो ना Is anyone listening? Mansimran ma'am. का जो मॉडल हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं उनके जो रिक्रूटमेंट ही ऐसी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी ऊपर एग्जाम का मतलब टफ लगता है। एजुकेशन का तो ईवीएम नहीं ये ठीक है, बिल्कुल कोई ये ग्रेजुएशन करके आया बच्चा एजुकेशन कैसा इसके राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल देखिए तो सही निकाल कम होंगे ज्यादा बना देंगे। इस तरह से हमें एलिजिबल कैंडिडेट बोलेंगे तो यहाँ ये आता है नेशनल टेस्टिंग
इसी तरह आपका सीटेट का रिजल्ट कम रह रहा था पीछे जो वो यही थी कि उसके अंदर कुछ सब्जेक्टिव की बात नहीं पूछी गई थी, वरना बच्चे रट के आंसर दे उसके लाने शुरू हो। तो ये भी कोर्ट केस हुआ कि भाई जरा सिलेबस तैयारी करो कि वहां क्या और यहाँ क्या, ये बच्चा इसे नहीं कर पा रहा, इसका तो उसमें बीएड ऐसे ही नहीं जो क्वालिफाई नहीं कर पा सोचने की बात, तो एक मिसमैच आ रहा था। तो ये बात शुरू होनी चाहिए शुरू से कि जब आपका बीएड का एंट्रेंस हो एनडीए तो एजुकेशन की डोमेन से बात हो, ना कि हो कि जो बैंक वाला भी कर लेगा कोई भी। दूसरा इसके अंदर बोला कि ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको मिल रहा है, इनको एक बीएड डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना होगा इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स लाइक साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, लिटरेचर, अदर जितने भी डिपार्टमेंट है इनके साथ इसको जोड़ना होगा, एक आइसोलेशन में काम नहीं करना होगा, तभी हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। यहाँ बात हम बीएड के अंदर लेते हैं बात को, हम पेडागोजी ऑफ biology of history, fine. We discussed that pedagogy. We never discussed biology. लेकिन जो मिसकंसेप्ट आप लेकर आ गए हमने उसे तो नहीं जांचा, हमने तो माना कि आप बीएससी हैं आपको पता ही होगा, चलो इसे पेडागोजी सिखा दो। नतीजा जो मिसकंसेप्ट आप लेकर आए हैं तो पहले ये टेस्टिंग एजेंसी इधर भी तो करे कि जो पढ़ के आए ग्रेजुएशन उसके खुद के कंसेप्ट ठीक है कि नहीं है, आप खुद के कंसेप्ट ठीक है और पेडागोजी सिखा दो। सारी कथा कर लेते हैं, एटम और मॉलिक्यूल में बच्चे को नहीं पता होता, परमाणु और अणु में पढ़ा तो I was shocked at my MSc. I was MSc previous. मेरा सीनियर था वो MSc फाइनल, मैंने भी पूछा मैं भाई ये कैसे होगी प्रॉब्लम, जैसे सीनियर है केमिस्ट्री तो मेरी गोल है, मैं सेकंड ईयर में मैं जूनियर हूं, मैं चुप हो गया था 3 साल बाद मिले, मैं कह रहा क्या कहते बीएड कर ली है और मैं स्कूल में पीजी, मैं केमिस्ट्री की है। अब जिसकी केमिस्ट्री गोल थी अपने मुंह से बोल के वो पीजीडी केमिस्ट्री कैसे एडमिट कर लिया एकेडमी में, क्यों अब वो इस साइकिल करेगा मिस्टर। और क्या था कि जब बीआईडी के कॉलेज में हम गए थे तो मैकेनिज्म ऑफ पहले इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि इनके कंसेप्ट की तो वो इधर से आएगा, जो हमारा जो लिबरल सब्जेक्ट का उधर से होगा ये में हम पेडागोजी की बात ठीक है, ठीक है, ये मैं बस है देन बीएड डिग्री विल रीच। अच्छा ये टाइम 4 बजे तक है, घड़ी मेरे हाथ में। The BEd degree will teach a range of knowledge, content and pedagogy. Strong fact. अब से पहले हमारा यही था कि प्रैक्टिकल ये आपका स्कूलों में हो जाता था, लेकिन अब हमने इंटर्नशिप पे डाली कि उसको और बल देने की जरूरत कह रहे हैं कि पेडागोजी के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, मल्टी लेवल टीचिंग, इवैल्यूएशन इन थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोच। शॉर्ट टर्म पोस्ट बीएड सर्टिफिकेट्स कोर्सेज शुड बी देयर फॉर शॉर्ट। आपने बीएड के अलावा बीएड के डिसिप्लिन थे, इससे मैं 1 मिनट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हासिल करना मेरा इंटरेस्ट है, एमएड नहीं करनी तो बीच का रास्ता निकालना है। आप एक शॉर्ट पोस्ट बीएड कोर्स करें, केवल उस सब्जेक्ट नाम भी बता रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री ये तो होते हैं, तो ठीक है सर्टिफिकेट कोर्स करो इस सब्जेक्ट आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों अगर मैं कोर्स करूं तो मुझे उस सब्जेक्ट के साथ 3 और पढ़ने पड़ेंगे, छुट्टी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसी को पढ़ता हूं। ये सुविधा आपको दी गई है क्या आपकी फर्स्ट बुक में। Smith, please, voice is not coming clear. Anyone, please. क्रेडिट सिस्टम में कहा कि एजुकेशन का बच्चा लॉ पढ़े तो एजुकेशन का बच्चा अपने सब्जेक्ट को स्पेशलाइजिंग करना करे तो ये करे तो हाथ देखना है, इससे हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ना कि ये सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है करके आ गया, हां जी करके आ गया, अटेंडेंस लग गई, खाने में क्या दिया था बस ऐसी बातचीत करनी चली दे। मैं इस बात में भी बड़ा डिसअपॉइंट होता हूं, मैं आपके सामने तो बात कर सकता हूं, आप तो अपने ये ऑनलाइन में ले रहा था कभी सेशन तो जैसे कि वो बोलते हैं कि काइंडली सबमिट द फीडबैक लिंक, काइंडली सबमिट द, अरे बात तो पूरी होने तो कम से कम। Sorry, sir, but your voice is breaking up. I can't hear you properly. फूड फॉर थॉट फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा तो थोड़ी सी हमारी ऑडियंस में भी मैच्योरिटी की इसमें है बात। देन पीएचडी एंट्रेंस की बात इन्होंने की गई है। All fresh PhD entrants will be required to take credit-based courses. ये तो अभी हो रहा है, जिसके अंदर आपको कोर्स करना होगा ताकि आप चाहे अलग-अलग यूनिवर्सिटीज से हैं, आपकी इक्वलेंट हो जाए। जैसे नॉलेज वो है अभी भी चल रहा है। टीचर रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने जो चर्चा की है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
will be extended to cover teachers across all new stages. That is foundational, preparatory, middle, secondary. ये उन्होंने स्टेज को नाम दिया 5+3+3+4 में। बाकी हो गए लोगों ने मुझसे पहले, तो उसमें इन्होंने कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब क्या अलग है इसमें बोले। Then for subjects teachers, मान लीजिए मैथ्स का टीचर है, teacher eligibility test and as well as national testing agency score, उसका एंट्रेंस वाला scores in the corresponding subject will also be considered for recruitment. बड़ी काम की बात है। हमारे नंबर जैसे तैसे आ जाते हैं और एंट्रेंस जिस दिन जॉब का रिक्रूटमेंट होता है, चलिए वहां भी आप क्वालिफाई करके वो वन डे शो होता है, आपका पेपर ठीक हो गया तो हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछला रिकॉर्ड भी हो, फिर ठीक है, ठीक है जी 70% उस एंट्रेंस के 30% आपके वो आ रहे हैं, तो ये देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस है, यानी वो प्लेयर ना बन जाए कई इंडिया टीम के हुआ, मैं नाम नहीं बोलूंगा कि वो एक ही मैच में चले बस ना आगे ना पीछे पर आगे मैच जिता भी लेते, बड़ा काम है मैच, तो वनडे शो भी ना बन जाए कि आज का पेपर ठीक हो, इसमें पूरा रिकॉर्ड इसमें देखा जाए। अब यहाँ प्लेसमेंट में भी बात एक आती है, थोड़ी सी आपके नंबर होते हैं ग्रेजुएशन बीएड पीएचडी, आपके नंबर जो होते हैं ये आपके एकेडमिक मैनेजरियल स्किल्स, जैसे फुटबॉल टीम हो उसने मैच खेले, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से 5 मैच खेले, फिर पता लगेगा फाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो ये 10th का पहला मैच है, 12th का दूसरा मैच, फिर ये 30 का पहले मैच में टीम हार रही है, यानी ये नंबर कम आ गए, तो डोंट वरी कि आसमान गिर पड़ेगा पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि इस टीम की बाकी के टूर्नामेंट के लिए तैयारी कैसे, देखो ये एंट्रेंस लेवल के हिसाब से क्वालीफाई कैसे करते हैं, बोलते हैं जैसे जनरली इसकी तो तैयारी अच्छी नहीं तो सेम है बच्चे के साथ। अब क्या मैसेज आता है, द टीम शुड इंप्रूव, द यंग चाइल्ड शुड इंप्रूव, 12th में नंबर है, ग्रेजुएशन में नंबर है, तो धीरे-धीरे आपको स्पीडली आपको इंप्रूव करना, तो वो बातें इधर भी होनी चाहिए। मैं कहता हूं ताकि एकेडमिक परफॉर्मेंस का भी ग्राफ हम देखें कि आपने ये कैसे इसका प्लेटू बना है, राइज हुआ है या फॉल हुआ है, तो इन बातों को भी हम देखें तब समझ आएगा कि थ्रू एक स्कॉलर हमने दिया है, वरना होता क्या है खाली बैठे थे चलो जी बीआईडी कर लो, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमें एक स्कॉलर चाहिए। आप खुद सोचिए जो कि खुद 40% नंबर आए हैं बच्चे को, कोई 70% आईक्यू वाले बच्चे को पढ़ा लेगा, but I see many people, I know them, 40%, 45% and they are teacher in some public school. I have talked to that public school and salute to those students. क्योंकि बच्चे ने सारा टेस्ट करके पूछ लिया तो गया वो टीचर था। यहाँ 1 मिनट की इस बात में फिर लौटूंगा उन लोगों के लिए जो नॉन अटेंडेंट हैं, अगर वो क्लास में गए उन्हें तो ऑनलाइन पढ़ने की आदत है, बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया 100 जीरो है कुछ डाटा पढ़ जाएगी, क्योंकि स्किल तो नहीं आया ना कि बच्चे को टैकल कर सके। टीचर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है, विकिपीडिया क्या पूछे, मुझे नहीं भी आता है मैं टॉप में एंड हाउ टू पास दिस एग्जाम। फिर उसके बाद आती है टीचिंग कैरियर एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात है। बाय 2022 तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एनपीएसटी हम स्थापित कर देंगे इसके अंदर, दैट विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर कैरियर, दैट इज इंक्लूडिंग टेन्योर, उसकी लेंथ कितनी हो। अब जैसे हम रिटायरमेंट एज बढ़ा देते हैं, बात करता था ये रीएम्प्लॉयमेंट हो गया था टीचर्स का, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी है। देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है, जो सर्विस कर रहा है ऑलरेडी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके 2 साल बढ़ जाए, लेकिन एक बच्चा जो अनएम्प्लॉयड है वो 2 साल में जाएगा पड़ जाएगा। कोई यंग टेक्नोलॉजी लेटेस्ट बात को लेकर आएगा, when it's for those persons who are working in the profession since last so many decades, what new they will bring to the field, they will only tell us what they know। एक बार में जाकर अभी वही बातें करते हैं जो पोजीशन में ऐसा है कि जो उन्होंने खुद के एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, जो टॉप बढ़ रही है तो वो आज का ही बच्चा यहाँ तक करेगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी इसके अंदर और एक यूथ को समय मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको इस तरह से टेन्योर के कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स ये तो चल ही रहे हैं इसके अंदर। सैलरी इंक्रीज ऑफ कोर्स पैसा भी चाहिए इसके अंदर, सैलरी प्रमोशन एंड अदर रिकॉग्निशन किए गए हैं। प्रमोशन के प्रोविजन तो होते हैं लेकिन वो होती नहीं है। नतीजा क्या होता है, पर्सन रिटायर इज नॉट एबल टू गेट बेनिफिट। और यहाँ एक बात और कह रहा हूँ, वी गो बाय डेजिग्नेशन नॉट बाय कॉम्पिटेंस। We go by designation not by competence। ये एक हायरार्की है हमारे समाज के अंदर।
जैसे कास्ट को लेकर है, हमारे यहाँ क्लास को लेके हैं, अमीर गरीब को लेके हैं। डेजिग्नेशन ऊंची है, हेड्स ऑफ, आइए बैठिए। डेजिग्नेशन नीचे है, ये तो क्या है, इनको तो छोड़िए, इनको क्या पता होगा। जबकि मुझे आप बताइए, क्या डेजिग्नेशन बदलने से कॉम्पिटेंस बढ़ गई? नॉलेज तो वही रहा ना, केवल नेम की तख्ती बदल गई। नकदी बदली तो जी प्लीज यहाँ आकर बैठिए, डेजिग्नेशन नहीं है तो वहां जाकर के बैठिए। 15 मिनट नहीं बोल सकते किसी टॉपिक पे, आज के समाज में क्या हो रहा है ये भी बोल दूं मैं, वही रिडंडेंट थॉट्स ज्यादा अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह से प्रमोशन का प्रोविजन रखिए ताकि एक स्टैग्नेशन ना आए। प्रमोशन में क्या फायदा होगा, अगर हम प्रमोट कर देते हैं तो नीचे पोस्ट क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी और यूथ आ जाएगा। समझिए बात, अगर प्राइमरी लेवल पे प्रमोशन करके आपने उसको टीजीटी बना दिया तो प्राइमरी पे सीट खाली हो गई ना, तो लाइए उनको वहां पर, नए बच्चों को, बनस्पत के वहां वो रुके हुए हैं, प्रमोशन हो नहीं रही है, यूथ हमारा अनएम्प्लॉयड है। नतीजा क्या होगा, सारे उठ उठ के इंग्लैंड, कनाडा और सिंगापुर जाएंगे, फिर तो यही होगा। ब्रेन ड्रेन इसे ही कहते हैं। इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन करना है। तो यहाँ ये मुद्दे बड़े अच्छी तरह से उठाए गए। इसके अंदर स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है। इवन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ये प्रोविजन है कि स्कूल प्रिंसिपल को भी एक वीक में 12 पीरियड, अगर 6 दिन माने जाते हैं, यानी पर डे 2 पीरियड उसे लेने होंगे। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में बिजी होते हैं वो नहीं ले पाते, लेकिन जरूरी है। इसी तरह हर टीचर के लिए 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर जरूरी है, उसे पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जी मेरी तो जॉब लग गई, अब मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, डिपार्टमेंट भेजेगा तो भेजेगा, मैं तो नहीं, यहाँ लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स के साथ भी होता है, 40 आवर्स इनको कुछ करना होता है, बाकायदा ने लाइब्रेरी में दिखाना होता है कि नहीं जर्नल्स इन्होंने पढ़े, अप टू डेट इन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, ताकि तभी तो लोगों को अटेंड करेंगे। वरना MR आकर के कमरे में बताया जाए जी हमारी ये दवाई है, इसका ये फार्मूला साथ में घड़ी दे जाए, तो इससे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होती कि इस बीमारी के लिए दवाई लो। वो आती है रिसर्च से, इनके रिसर्च जर्नल्स होते हैं। और मैं यकीन मानिए, आप इनके रिसर्च जर्नल पढ़िए साइकेट्री के, आपको समझ आएंगे, बड़ा अच्छा वो लिखा होता है उसके अंदर, क्लियर लैंग्वेज के अंदर। साइकेट्री के जर्नल समझना आपके और हमारे लिए आसान है, क्योंकि मोर लेस साइकोलॉजी हमारे पास है यहाँ पर। तो इस तरह से इनकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की चर्चा चलती जा रही है। अब थोड़ा सा हम बात को सॉफ्ट लेके जाते हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए कि स्किल डेवलप, इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे मैंने आपसे बात की है। इन अगला
अब आया। सिक्योरिटी दीजिए, एश्योरेंस दीजिए, लेट इट बी, मैं हूं ना यहाँ पर ट्रेनिंग, तो केमिस्ट्री यहाँ से आएगी इसके अंदर, जब से सिक्योर है। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉजिक, मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ, इसका लॉजिक क्या है, मतलब क्यों ऐसा होता है, लॉजिक के अंदर ये लॉजिक के बारे में बोल देता हूँ मैं। मैथमेटिक्स इज a subject that is perfectly logical. Mathematics has no language of its own. So mathematics is the most abstract discipline. अगर मैथमेटिक्स में कोई आदमी अच्छा है तो समझ लेना वो आदमी एब्स्ट्रैक्शन में अच्छा है, और जो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, तो कॉन्क्रीट लेवल पे अच्छा काम करेंगे तो चाहे तो एब्स्ट्रैक्शन पे आ सकते हैं। एंड डू रिमेंबर एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस सब्जेक्ट को ढंग से तो पढ़िए, मैथमेटिक्स बहुत रिवार्डिंग सब्जेक्ट है। सो डोंट डेवलप हेट फॉर, डेवलप विल पावर फॉर दिस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। लॉजिकल थिंकिंग, अब पियाजे के मुताबिक वो बच्चा हमारा इंट्यूशनल स्टेज पर प्री ऑपरेशन चल रही है 2 to 7 और बच्चा आपका यहाँ है। यहाँ पर इस समय बच्चे को वर्ड के साथ एक क्रिया इंटरेक्शन कराना था, बजाय उसके कि फोटो दिखाने के। चलिए अब तो पेंडेमिक है, क्यों ना आप एक जू का विजिट, व्हाई डोंट गो फॉर साइंस म्यूजियम और मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ। आपको कोई भी फिल्म अच्छी लगी होगी, देखी होगी, जो मैं नहीं पूछता, उसको क्रिटिसाइज में या उसमें कमी निकालिए, ये कमी है। अच्छा आप होते तो कैसा करते? मैं होता कैसे? यहाँ से ऊपर वाली क्यूरियोसिटी आ रही है, मैं बोलूंगा, लेकिन धीरे से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे, क्योंकि मैं होता तो ऐसे करता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर। अब आपको जो फिल्म अच्छी लगती है, बाहुबली या जो भी कुछ है, सोचिएगा, इसको अपने में लगाइए, then do this. You see, with such funny exercises, we can develop the skill among them, rather than कि mathematics में integration की problem दे दूं या पूछूं इस काम को इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, बताइए इतने आदमी इतने लेडीज कितने दिन में करेंगे, ये प्रॉब्लम है। और देखिए स्किल ये तो कैसे भी कर सकते, तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू, क्योंकि ईसीसी स्टेज है, देन आर्ट्स क्राफ्ट एंड म्यूजिक गाना सुनना और डांस करना, कोई माइकल जैक्सन होने की जरूरत नहीं है। गाना गाने के लिए कोई परफेक्ट सिंगर होने की जरूरत नहीं है। किससे बन सकता है? कहते हैं कि अगर खुश रहना होना, एक नॉनसेंस हॉबी पालो, नॉनसेंस। डांस आता नहीं, डांस करते हैं अकेले कमरे में, करते हैं कोई भी अपने दिल के राजा करते, हम किसी से कम नहीं, अकेले नहीं करेंगे कोई बात। गाना बिल्कुल बहुत खराब आवाज है, पड़ोसी को डिस्टर्ब, शायरी मुझे आती नहीं, पर जो मन में आता है लिख देता हूँ। Let's see the happiness that's what you, क्योंकि आपके अंदर का जो बच्चा है, आपने बाहर शरीर बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड आ रहे हैं, क्या बच्चों से बात करें, उस बच्चे को सामने लाना, यही फिलॉसफी चल रही है कि जैसे वो बच्चे आए आर्ट्स क्राफ्ट और म्यूजिक के द्वारा हमने एक मौका दिया कि शायद जिसके अंदर जोश थी वो सामने आए, बट वी ऑलवेज एक्सपेक्ट परफेक्ट बॉडी। पहले तो होंगी नॉनसेंस करते हैं, नॉनसेंस ड्राइंग, नॉनसेंस डांस, उसी को सेंस वाला बनाना, तो ये हमारी, अगर उसे पहले सब कुछ आता तो हम कैसे बात करें? तो इस विजन के साथ इसमें बातचीत की है। देन रिलेशनशिप विद नेचर, यस रिलेशनशिप क्या है? अजी ऐसी का घर दे अगर गमला लाता है और पानी पा देना चाहिए, अजी का बड़े नेचर को लव करना नहीं,
नेचर तो लव का एग्जांपल दूं, एक 50 का नोट पड़ा होगा सड़क पे, 10 का सारे उठा लेंगे। मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर उठा लेगा, लॉजिक है। अरे अंकल चिप्स का अगर पाउच पड़ा हो मैं क्यों उठाऊंगा? उम्मीद है बात समझ में आ गई। वो जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? पहली गलती उस अंकल चिप्स वाले ने फेंका था, कंसर्न किया कि हमारी सड़क को गंदा कर रहे हो, इनकम टैक्स नहीं देते हम, क्या हम टैक्स पेयर नहीं है, इसने आपको हक दिया हमारी सड़क को गंदा कर, लेकिन कानून नहीं करता कर साटे बना ये नहीं छूट देती। तो इन फ्यूचर सिटीजन में लाइए, मैंने अपनी आंखों से देखा था राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक बच्चा था 7वीं 8वीं का था, वो लाइन लगी थी जैसे होती है, लाइन लगी थी, बच्चा आगे खड़ा, उसके दादाजी जैसे मेट्रो आई दादाजी आगे चीरते हुए लेकर गए, तो वो बच्चा बोलता रह गया, दादू ऐसे नहीं करते, मैं सुन रहा था अंदर खड़े पास था तो वो बच्चा, तो दादाजी कहते हैं ऐसे ही करते हैं, छोड़ना पड़ेगा। कहता दादू हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं सिखाया। अब इस बच्चे को गले लगाने का दिल कर रहा था, जो विरोध कर रहा था कि हमें ऐसा नहीं सिखाया, लाइन में आना। दादाजी पता नहीं अब होंगे या नहीं होंगे, पर एक रास्ता से छोड़ के गए हैं पीछे, क्या किसको मैं क्रेडिट दूंगा? आखिर क्यों? मैं फिर कहता हूँ ये बच्चे यंग जनरेशन से मच बेटर इंसिस्ट, ये एटीट्यूड तो बच्चे को क्या, वो बच्चे ही समाज का हिस्सा है। बच्चों के साथ रहने से ये पता चल जाता है समाज में हो क्या है। हम रहते लाइब्रेरी में, वो 1957 की बुक पढ़ ली, वो जर्नल पढ़ा, छापे पर पढ़ा वहां का, और ये हो रहा है। इनसे भी तो सीखिए कि उस 1957 की बुक को इन बच्चों में कैसे लगाना जो आज के परिवेश में जी रहा है। रिलेशनशिप विद नेचर, टीचर के सेंस में कह रहा हूँ, बच्चे भी तो हमारे एक नेचर का पार्ट है, उनके साथ हिस्सा। कलर, शेड्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, ए फॉर एप्पल ही होता है, ए फॉर एरोप्लेन का, लेकिन हमने फोटो ए फॉर एप्पल ही बनाई है। आप उसको बोलिए उससे बच्चे को, ठीक है ए है, बताइए ए से कितने वर्ड्स आ रहे हैं, एक तरह की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक बच्चे से पूछ रहे थे वो बोले बी फॉर बुक, एक ने कह दिया कि बी फॉर बंदर। अब बच्चा भी ठीक है, बी फॉर बुक और बी फॉर बंदर, तो बोला बात करनी पड़ी, बी फॉर बुक होता है, बी फॉर बंदर बंदर का सिंपल सा, वो हिंदी भाषा में समझते हैं जो भाषिक सवाल है, तो इंग्लिश भाषा में समझते हैं जो भाषिक सवाल है, तो फर्क तो टीचर में है। राधा जन तू बस पढ़ ले, ये गलत नहीं है, पॉइंट समझ। बच्चे की जो थ्रस्ट है नॉलेज की थ्रस्ट है, उसे तो बुझाना भी हमारे पार्ट पर होगा जब वो अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के साथ वो डील करें। अगर थोड़ा सा टाइम हो तो बात टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ये मैंने उस समय कहा था कि जब बच्चा आ जाए हमें गेम खेलनी है, तो बच्चा आ रहा है नर्सरी के अंदर उनकी टीम बनाने के लिए, रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल गेम। यदि बैडमिंटन में 2 बच्चे खेल रहे हैं, कहने से 2 आगे बढ़े हम प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड। इसके अंदर क्या होगा डिस्कवरी बेस में, आप एक कहानी शुरू कीजिए, उस कहानी को आधा कर दीजिए, थोड़ी सी सस्पेंस हो, अच्छा अब क्या हो सकता है इसके बाद, एक टेंटेटिव एंडिंग उनसे पूछिए, आपसे पूछिए एंड देन सी इट। आप फिर उनसे पूछिए कि इनकी बात सही है गलत है, एक तरह क्रिटिसिज्म होना शुरू होता है। बिलीव मी यू विल कम विद फैंटास्टिक कंटेंट। बच्चों की दुनिया बड़ी अच्छी है। इसका एग्जांपल था, मैंने वन लाइनर स्टोरी करी बच्चों से, मैं बोलूंगा जैसे मैं टीचर हूं तो आप बच्चे, मैंने कहा एक बार, अब आपने लाइन बोलनी, एक लाइन बोलेंगे, मैं बोला एक बार, बच्चा बोला एक राजा था, दूसरा बोला वो बड़ा भूखा था, तीसरे ने कहा उसने कई दिन से कुछ खाया नहीं था। मैं कहा बेटा ये कहानी की राजा की किसी भिखारी की है। अब चौथे बच्चे की हाजिर जवाब मिली सर नाम राजा, वही बात कर गया बच्चा, छोटा सा बच्चा 6 साल का, क्या एंडिंग उसने दी, उसका नाम राजा है। हम मैं राजा समझ रहा था बात है, व्हाट डज इट इंडिकेट क्रिएटिविटी ऑफ ऐसे। अपने घर पे छोटे बच्चे हो ना, उनके साथ स्टोरी करना वन लाइनर। कभी हमारे स्टूडेंट आपको मैं करूंगा, जैसे हम ये 2 हैं, मान लो ये छोटी बेबी मेरे सामने में, मैं बोलता हूँ एक बार की बात है, अब ये लाइन फिर मैं बोलूंगा एंड सो ये जो टेबल टेनिस का गेम चलेगी ना, तो जब एज ए टीचर आपका जो सेंटेंस हो वो ओपन एंडेड, ताकि बार-बार उनको शेप लेनी पड़े एक एंडिंग की तरफ जाने पे, और फिर कहानी का एंड हुआ एंड सी द क्रिएटिविटी एंड दिस इज प्रमोट राइट। अगर एक कहानी आपने ना सुनाई तो दे विल बी हेड योर लाइफ, क्योंकि चिल्ड्रन आर
जैसे मैं रजिस्टर रखूं, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई नहीं देखेगा, अंदर सी आप निकलिए तो सही, उठ के तो इसी की उसकी हमें बहुत जरूरी चीज है। उस बच्चे में एथिक्स थे जो राइजिंग शो पे कह रहा था कि लाइन में मॉरल वैल्यूज थी, तो हमें इसको करना भी सिखाना। बच्चे लोग स्कूल में तो बहुत अच्छा करते हैं, हमारे एजुकेशन का मॉडल माना गया है। एजुकेशन पता है क्या है? एक पानी पीना है, जैसे कप में रख दो कप की शेप ले लेती है, बाल्टी में रख दो, बॉटल में रख दो, इस बर्तन में रख दो उसकी शेप ले लेती है, इसकी बुद्धि नहीं है। हमने एजुकेशन की शेप यहाँ क्या मानी है कि मास्टर क्लास में पढ़ा रहा है, किताब उसके हाथ में लगा हुआ, बच्चा होमवर्क से घर पे आता है परेशान रहता है, इंग्लिश बोल देता है, होमवर्क करता है, इंग्लिश बोल देता है। दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन तो तीन हमारी बात है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल एजुकेशन घर पे होती है, जब घर पे वो जैसे दादाजी भी बात सिखा रहे थे और स्कूल में टीचर सिखा रहा है कि भैया लाइन में लगो, बच्चे की कंफ्लिक्ट आएगा, अगर चाइल्ड विल गो विद मैच्योर, क्योंकि स्कूल तो कुछ समय ही रहेगा, घर पे उसने ज्यादा रहेगा, घर पे ज्यादा समय बिताना है, वो मेल प्रैक्टिस सीखना चल पड़ेगा, टाइम तोड़ देगा। तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमने मॉडल स्कूल में टीचर जो पढ़ा रहा है वही एजुकेशन है, बाकी घर में कुछ नहीं है। घर में हम जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग, जो हम तू की भाषा का प्रयोग करते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन बच्चों को आप और तुम कहते हैं, बच्चा देखता है कि आपकी बोल ताकि आप उससे बात समझे। रिस्पेक्ट है की होती है, छोटा या बड़ा, ये छोटा इसमें कुछ नहीं। जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंकते जा रहे हैं, इकट्ठा होता जाता है पानी के अंदर, इसी तरह उसके मन के ऊपर नेगेटिविटी आती जाती है, नतीजा रेसिप्रोकेट क्यों? उसकी अपब्रिंगिंग इस मामले में। तो बी वेरी पेशेंट while dealing with ethics aspect of self identity। बच्चे की आइडेंटिटी भी बन के रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ लिख के ऊंची जॉब ले, व्हाइट कॉलर जॉब लो, तेरी ये सैलरी हो, इससे भी बड़ी रोमांचक बात है। हाँ, रोमांचक बातें आया करती हैं कि बड़े टॉपर होते हैं हमारे यहाँ से, बड़े अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, फिर वो कहीं फॉरेन में चले जाते हैं, मल्टीपल बिलियन डॉलर्स में सैलरी होती है, फिर एक दिन रिसेशन आ जाता है, निकाल देते हैं, फिर वो तनाव सह नहीं पाते, क्योंकि हमें असफलता के लिए सिखाया नहीं। हमें सफलता, कामयाब होना, नाकामयाब हो गए तब क्या होगा वो भी तो क्या नहीं। और कोई ऐसा धरती पे आज तक बाद में ऐसा हुआ नहीं कि जैसे सफलता ही मिली आज तक उसकी झोली में, या कोई ऐसा कि जैसे नाकामयाबी ही मिली हो, कुछ तो मिली होगी कामयाब था। तो सेल्फ आइडेंटिटी यहाँ पर आती है, आर यू रेडी टू एम्ब्रेस द पॉजिटिव एज वेल पॉजिटिविटी एज वेल नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी है अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर, बुरी बात है ठीक है एक्सेप्ट, और आगे बढ़ना। हमने इस बात पर बदल लिया, स्किल डेवलपमेंट यही है, हमने तो आपको टॉप ही करना सिखाया, बस स्टॉप करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ के अपना निकल जाओ। समाज को कंट्रीब्यूशन है वो फिर ये मुद्दा इधर भी आ रहा है। एटिक्यूट बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, ये पहली दो बातें छूटी है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट के लिए मैं आपको कुछ इमोशंस देखिए आ रही है, और मेरी स्लाइड चेहरे देख लीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है, लेजेंडरी एक्टर ऑफ और बॉलीवुड, उम्मीद है नाम नहीं पता होगा कईयों को, यंग लोगों को नहीं पता होंगे, एनीवे जो भी हो, ये चेहरा देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको देख सकते हैं इमोशन की तो है, कितना अच्छा लगता है ये मुस्कुराता चेहरा, और वही चेहरा कितना तना हुआ है, दूसरे की देख लीजिए भी आएंगे कुछ क्या करके, क्या बता एक में बड़े टेंस है, दूसरे में तो बिल्कुल सजन पुरुष से केबीसी का सवाल पूछने वाले हैं आपसे, यही जान गया इमोशन। अब इसको अगर आपका सिस्टम इजाजत दे तो मैं वीडियो चलाना चाहूंगा, अगर वो यहाँ तो उससे मैं और में दिखा दूंगा समझ वीडियो रन कर सकते हैं, मेरा पेन ड्राइव में दी हुई है। कुल मिला के इमोशनल डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत जरूरी है, इस वजह से हम इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं, आईक्यू नहीं, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चंस देखने लगे, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ इमोशनली यू आर इंटेलिजेंट, कहते हैं बी इमोशनल इनफ to understand others' intelligence and be intelligent enough to understand others. ये वाली बात
अब जैसे मेरा मजबूत इंसान भी होते हैं भैया, ये मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पिताजी को डाकू मनोज देव ने मारा था, तब मैं भी बहुत रोया था, रोते रोते आंखें चल रही। अब मैंने रोना भी बंद कर दिया है। मैं तो रोया ही नहीं। इसमें आपने देखा इस बच्चे की कितनी इमोशनल डेवलपमेंट की तरह वाले लोग होते हैं। चाइल्ड इज मोर इमोशनली डेवलप्ड होता है। लेकिन कैसे डेवलप हुआ व्हेन यू लॉस्ट? ये परिस्थिति आज कंडीशन की और बच्चे के अंदर। मैं केवल इस एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं इमोशनल डेवलपमेंट चर्चा करेंगे तो इन प्रैक्टिस मेरे पास वो भी वीडियो है, लेकिन हम और दूसरी तरह का बन जाएगा। दे आल्सो टारगेट और पॉइंट टुवर्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। हाउ इमोशनली वी आर डेवलप वी आर। अगर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जिंदगी क्या बन जाती है। Thank you so much, sir, for your session and making us understand the importance of emotional intelligence at the end of your session. So I would request to our viewers who are attached with us through online, if they have any question regarding this session, we have to report. Thank you, sir. It will be more comfortable because we have the audience here asking questions. All right, we would like to take the questions from our audience present here. Kindly speak your name and the question, please. Come on. Please, Ms. Sunai. Can you remove your mask? We go by designation and not by law. And in schools, I have also seen that there is need or any organized, anything is organized. Only PRP teachers are given something, a lead, something that, okay, you organize this decoration part, or you organize the invitation of chief guests. But PRP teachers are not given any opportunity to show their skill. When in decoration, they can be far better than the PRT teachers themselves, than the PGT. How do we conquer this situation? There is no answer to this common all over of time. When PRT की बात में इन्वेस्ट भी आप मिल जाए। In the sense कि मैंने कहा go by designation. अगर high designation में you are more competent, low designation में अभी नहीं है। ये हायरार्की हमने बना ली है। मैं बता दूं थोड़ा सा इसके अंदर और भी बात या अगर मेरी बात को अदरवाइज ना समझे, हायरार्की बहुत चलती है हमारे समाज के अंदर। ये बड़ा है आपसे, ये छोटा है आपसे, आयु में बड़ा है। कोई अपने चाहने से जन्म नहीं लेता, ठीक है, लेकिन हमें कई बार ये करना पड़ता है तो गलत बात भी कहना नहीं चाहिए। ये हायरार्की बनी है, राइडर हमने अपने आप में दूरी पैदा करनी है। अगर हम एक लेवल पे आ जाए तो ग्रोथ कहाँ जाएगी, लेकिन हमने काफी पार्टी या पीआरटी काम करेगी। वो वाली बात है कि डू लिटिल क्राइम और कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है जो आपको बात है। क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो ऑफ आवर सिस्टम। हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत मैं स्कूलों में भी कहता हूं, सबसे ज्यादा नर्सरी टीचर करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल फिर पीआरटी
और पीजीटी को देख ऑलरेडी फॉर्मल ऑपरेशन के एरिया का स्टूडेंट है, इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट है, उसने क्या कर रहा है स्पेशलाइज्ड चाइल्ड है उसके अंदर, उसका काम इतना नहीं है इतना नीचे के लाने के, तो मॉरली कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा। मैं इन्हीं को बात करना चाहूंगी कि अभी बहुत सारे सेशंस हुए हैं जिसपे भी हमारे स्पीकर्स हमारे सारे स्पीकर्स से बात करती है हम कैसे शिक्षा को हकीकत के साथ में जोड़ना। हम शिक्षा को जब हकीकत के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें अध्यापक को लेके आते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेके आते हैं, पॉलिसी मेकर्स को लेके। बट मुझे ये लगता है हकीकत के दायरे में हम समाज और पेरेंट्स को कहीं पीछे छोड़, बच्चा हमारे पास 6 घंटे के लिए है और वो समाज और पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताता है। अगर हम बच्चे को हकीकत से रूबरू कराना भी चाहें तो समाज में जाके उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे कि नहीं हमारे कल्चर के लिए हमारे उसके हिसाब से तो यही चल रहा है, तो तुम इसको समझो, तो उसको मत समझो कि जो तुम्हारे अध्यापक होते हैं। तो सर क्या हमारी पॉलिसी में इसकी जरूरत है कि हम एक पेरेंट्स और अध्यापक के बीच की जो कम्युनिकेशन है उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि जो बच्चा है और समाज के बीच की जो दूरी है वो हम कम कर सकते हैं और जो पढ़ रहा है हम हकीकत बना। मैं मेरे लास्ट में जो मैंने बात ठीक है हम मॉडल हमारे वो मैंने पानी वाला एग्जांपल ये तो टीचर का काम है हमारा काम है नहीं है, तो मैंने भी इस बात को मैंने ऐसा बात के जरिए कह दिया कि जरूर इस बात की पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करें। इनफॉर्मल एजुकेशन तो हमारी वही क्या है। दूसरा इसके अंदर जो आपने बातें ये कही है इसका जो प्राइमरी एजेंट होगा इस बात को प्रमोट करने वाला वो हमारे प्रमोट करेगा और वो हमारा जो कॉम्पिटेंट होगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्कोर काउंट हो रहा है, इतनी रिक्रूटमेंट काउंट हो रही है तो कहीं से तो ज्यादा वो भी आएगा जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स आएगा। पहले क्या था लेस कॉम्पिटेंट लोग आ गए वो तो नहीं टीचिंग तो यही तो खुद जैसा स्टूडेंट रहा वैसा टीचर बन गया, लेकिन टीचर जो होगा वो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेगा। पीटीएम में खाली ये डिस्कस नहीं करनी है पेरेंट्स का ये घर पे नहीं पढ़ता टीचर के ये यहाँ नहीं पढ़ता हमारा ये मुझे डिस्कस होता है डिस्कस समथिंग अबाउट पॉजिटिविटी आल्सो इसके अंदर ये स्किल है मुझे इसको बढ़ाना है ये नहीं कि बस इसकी मैथ में नंबर कमा ये नहीं है तो ये टीचर के थ्रू होगा। टीचर की एम्पावरमेंट की जो बातें की हुई हैं ओनली दैट इज द वे। सर मतलब कुछ डिस्कस कर सकते हो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है सर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो जो मतलब मैंने इम्प्लीमेंट करा है। सर मैं ट्यूशंस भी लेता हूँ साथ साथ ना तो सर एक ट्यूशन पढ़ानी थी तो मेरे को जब रेफरल आया ना तो उन्होंने एक चीज कही कि बच्चा ना पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ने में बिल्कुल जीरो है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं वो जीरो नहीं हो सकता वो डल नहीं हो सकता। तो उसने कहा नहीं मैंने कहा कोई नहीं इनोवेटिव थोड़ा सा तरीके से कोई अलग तरीके से करेंगे। नहीं जितने मर्जी तरीके कर लो वो करेगा ही। मैंने कहा वो करेगा। जब मैं उसके पास गया ना मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में पहले नॉलेज हो गई थी जिसके थ्रू मेरे को रेफरेंस मिली थी उसके थ्रू मेरे को नॉलेज हो गई थी कि वो ना उसका गेम्स में ध्यान ज्यादा रहता है स्टडीज में कम रहता है। तो जब मैं उसके पास गया ना आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम हेल्थ के जो हेल्थ का चैप्टर उसको मैंने एक चीज उससे रिलेट करी। मैंने कहा हेल्थ क्या होती है? कहता सर जैसे हम हेल्दी मतलब हेल्दी है या वो रेसलर्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा रुको। तो उसके बाद उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जांपल दिए। मैंने कहा फिजिकल फिटनेस किसको कहते हैं जैसे टाइगर शेरॉफ वो अपनी तरफ से ही बोला। मैंने कहा यस मतलब उसको उसी की नॉलेज से जब मैंने हेल्प करी ना रिकॉल मतलब उसको करने में तो वो सर आप मानोगे नहीं अभी 15 डेज हुए थे मतलब वो पता मेरे को 2 दिन पहले क्या कहता है कहता सर आप तो मेरी छोटी से छोटी चीज को अप्रिशिएट कर देते हो अभी तक तो किसी ने करा ही नहीं था। वो तो मेरे को कहता है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता सर तो यही कहते हैं। मैंने कहा नहीं बच्चे जो चीज आप अच्छी कर रहे हो उसके लिए आपको मैं अप्रिशिएट भी करूंगा बिल्कुल। और सर एज अ रिजल्ट आज उन्होंने ना घर शिफ्ट करना है तो उन्होंने ना 2 उसकी ट्यूशन होती है। उसने ये कह दिया अपनी मदर को कहता है मम्मी फ्रेंच वाली बेशक कैंसिल करा देना मैथ्स और साइंस वाली मत। थैंक यू सर। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो किया। जब मैंने कहा ना कि जैसे बच्चा एग्जांपल देता मैं उसको जोड़ देता तो ये एजुकेशनल वैल्यू उसकी निकाल लेते जैसे टाइगर श्रॉफ का इन्होंने बताया तो उस यही कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे हम क्या है
तुम अपना छोड़ो, मैंने जो सिखाया उसको सीखो, तो बच्चा क्यों सीखेगा। दूसरा, बच्चा रिकॉग्निशन मांगता है। मैंने भी जैसे बोला कि ऑल चाइल्ड आर इक्वली ना, तो ये ऑप्टिमिज्म के साथ गए कि हर बच्चा कैपेबल है, मुझे काम करना चाहिए। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया तो नतीजा इनके सामने के बच्चा नहीं छोड़ना नहीं था। कोई बात आई ना, स्टूडेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आपकी तरह को आगे चलिए। Any other questions? So I guess this brings us to the end of our today's session. Thank you so much, sir, for enlightening us and making us understand that your numbers doesn't describe your intelligence. Your way of delivering knowledge and impacting people describes you. Thank you very much for today's session. Please give a huge round of applause. I would request our principal ma'am to please come on the stage and give a vote of thanks to sir. I'd like to take this honor in thanking our resource person, Dr. Amita Huda, Assistant Professor, University School of Education, Govind Singh University. We conducted such an insightful session on in-service professional development of teachers and skill development of the students, developing them from their IQ to EQ. We thank you, sir, for sharing finest knowledge and technique. We also thank you for your encouraging words, sir, that this faculty development program is like oxygen to you. We are really honored. I would like to take this opportunity to express my gratitude to the management committee and everyone, including our viewers who are attached with us in person and virtually. We also look forward to meet again on the 6th day of this faculty development program. This session will be conducted by Professor Harjeet Kaur Bhatia, the Department of Educational Studies, Jamia Millia Islamia, on the topic NEP, the road ahead. I'm sure that her presence will prove as a valuable asset, which will help us to stay updated, learn more and more, and blossom. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone who was a part of today's event. Your presence made it a remarkable experience. Please, I would like to conclude by a stake of freedom not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Let's close this event with the beautiful patriotic fields. I request you all to please stand for the national anthem. We also have a cup of tea and coffee ready for all of you before you leave. Please let's stand for national anthem. Thank you, everyone. Bless you all. Thank you.